Hello everyone. In this video lecture, we are going to prepare some of the current affairs related to people development and environment, right? एक latest जो है current affair है with respect to this unit. So let's prepare it to attempt multiple choice question based upon this content. Okay, watch the video till the end. All the best. Now the current affairs which you are supposed to prepare is Antarctic Treaty, right? Now what is this Antarctic Treaty? It is an international agreement for the management and use of Antarctic, right? There is Ministry of Earth Sciences under the Government of India through the National Center for Polar and Ocean Research, NCPOR. You can prepare this, but chances are very less. You should know the full form of NCPOR. They are going to host 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting. This you have to prepare because this is latest information, current hai. 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting, which is going to take place from May 20 to 30, 2024. Where it is going to take place, you must prepare in Kochi, Kerala. It is going to take place along with 26th meeting of the Committee for Environmental Protection, abbreviated as CEP 26, right? So this CEP, it usually meets concurrently, means side by side with the ATCM to address what environmental protection matters. This Antarctic Treaty, it was first signed in 1959 and it entered into force in 1961. Right, so it established Antarctica as a region dedicated towards peaceful purposes, scientific cooperation, and remember this, environmental protection. You must note down this that as of 2024, as of today, the treaty has 56 parties, or you can say countries, to it that have ratified to this treaty. India, remember this, India has been a consultative party to the Antarctic Treaty since 1983. There are a total of 28 consultative parties to the Antarctic Treaty. India's first Antarctic research station, Dakshin Gangotri, was established in 1983. You must know that India has been a consultative party to the Antarctic Treaty since 1983, and their first Antarctic research station named as Dakshin Gangotri was also established in that year 1983. So at present, India operates two year-round research stations, Maitri 1989 and Bharti 2012. So for you, for UGC NET or SET examination, you need to remember this 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting. It is going to take place from May 20 to 30, 2024 in Kochi, Kerala, and India has been a consultative party to the Antarctic Treaty since 1983. As of 2024, the treaty has 56 parties or countries, right? So for more detailed information related to Antarctic Treaty, I've made a PDF file which is uploaded on my app. If you want to prepare, you can WhatsApp me at my number, right? तो next I will talk about the features of this book कि ये जो book है आपको कैसे beneficial रहेगी. Even if you have not prepared paper 1, आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग हैं या आपने कोई भी ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी बाय किया हुआ है, देन ऑल्सो दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. इस बुक में 2014 से लेकर 2023 तक, दैट मीन्स 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 1 के, वो टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट किए हुए हैं एंड यूनिट वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं, राइट? और बुक में स्पेसिफिकली जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस नए एडिशन में सारा कुछ कवर किया है, राइट? सो ट्रेंडिंग का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, अब टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे थे, टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, राइट? देन ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे 2023 में. तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं, वो जो सारे क्वेश्चंस हैं, जो वो कंटेंट है, दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन इन अ वेरी एलैबोरेटिव फॉर्म. जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बहुत एलैबोरेटिवली दी हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस क्वेश्चन को ही समझाया है, नो, उस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप किया है. फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी हैज बीन कवर्ड वेरी नाइसली. देन अब स्वयं प्रभा था एक ट्रेंडिंग टॉपिक. इफ आई टॉक अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, स्वयं प्रभा एक ऐसा टॉपिक था जिसके क्वेश्चंस जो हैं
8 to 10 शिफ्ट्स में आए थे 2023 यूजीसी नेट फाइनल एग्जामिनेशन में। तो स्वयं प्रभा के जितने भी क्वेश्चंस इन शिफ्ट्स में आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है दैट हैज बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन। ट्रेंडिंग का मतलब ये है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑनलाइन टीचिंग सॉफ्टवेयर हो गया या ज्ञान पे आजे जो है, ये इनका एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड ओवर है। Giving you more such examples, important and trending topics का क्या मतलब है? If I talk about research aptitude में validity जो topic है उसके ऊपर बहुत सारे questions आए हैं different shifts में, तो वो पूरा का पूरा topic जो है fully elaborated जो है इस new edition में, third edition में cover up किया गया है। Then इस बार इन्होंने research aptitude में statistics के questions बहुत पूछे थे related to p value, correlation, regression, dispersion, skewness के regarding। वो सारा जो content है वो इस न्यू एडिशन में इंक्लूड किया गया है, राइट। देन प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर्स के ऊपर या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च हो गया, एपीए स्टाइल हो गया, या कोई भी एब्रिवेशंस हैं जो एकेडमिक राइटिंग में यूज़ की जाती हैं, वो मैंने सारी एब्रिवेशंस जो हैं इस न्यू एडिशन में कवर अप की हैं। देन विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, इस बार इन्होंने बहुत सारे नए टर्म्स जो हैं वो ट्रेंडिंग थे। फॉर एग्जाम्पल डायलॉजिक कम्युनिकेशन, देन वेस्टर्न कम्युनिकेशन, बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे या क्वेश्चंस कह सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन हो गया, जो ऑलरेडी थे वो सभी को पता है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, वर्बल, नॉन वर्बल, दैट एवरीबडी नोज, ठीक है। जो ट्रेंडिंग, जो इंपॉर्टेंट, जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो सारे जो हैं इस नए एडिशन में कवर अप किए हैं। विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, I have incorporated some quick formulas related to compound interest, simple interest, so that you can solve your questions very quickly on the final day. Then logical reasoning में, with God's grace, the content has been covered in such a way in the new edition of the book that you will be able to correct 100% out of 5 questions which will be there in logical reasoning। 4 questions आप 110% सिर्फ इस बुक का कंटेंट कवर अप करके you will be able to do, whether you are involved in an online course, आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हो, कोई आपने ऑनलाइन कोर्स बाय किया है, सो दिस बुक विल बी वेरी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर लॉजिकल रीजनिंग जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे थे इस बारी, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे कॉनोटेशन, डेनोटेशन ऑफ टर्म्स के ऊपर, दैट हैज बीन कवर्ड इन द न्यू एडिशन। देन वैलिडिटी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ हो गया, देन फॉर्मल फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज, सारी जितनी भी फॉर्मल फैलेसीज हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज हैं, विद देयर एग्जाम्पल्स, दे हैव बीन कवर्ड इन दिस न्यू एडिशन, राइट। देन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इन्वॉल्व किए हैं इस न्यू एडिशन में, प्लस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी सेपरेटली प्रॉपरली डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन किए हैं न्यू एडिशन में, right? Then data interpretation के regarding you can practice lot of questions from this book from 2014 से लेकर 2023 तक। सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें रेशियोज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेजेस फाइंड आउट करनी है, या मिसिंग फिगर डीआई है, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्लस हर एक डीआई जो है फुली एक्सप्लेन्ड है, लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन देयर। फॉर आईसीटी में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे हिरार्की वाला क्वेश्चन जो है, मेमोरी हिरार्की वाला, या जो टर्म्स हैं आईसीटी में, again and again NTA is placing you the terms related to ICT। वो सारी important terms जो हैं वो सारा कुछ कवर अप किया गया है, जितने भी important topics हैं या terms हैं ICT के, या abbreviations हैं from 2014 to 2023, जितने भी important terms हैं वो हर एक चीज़ इस न्यू एडिशन में कवर अप की गई है। और जो न्यू टॉपिक्स हैं लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बुक। इस बार इन्होंने कुछ नए टर्म्स पूछे थे, ट्विनिंग, मॉर्फरिंग, वो सारी कुछ जो हैं वो सारी टर्म्स जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। देन कन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू in ICT, conversion of number system, that has also been included in this new edition. If I talk about people and environment में जितने भी important topics हैं या जो trending topics I must say,
विद रिस्पेक्ट टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, VOCs के ऊपर अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन है, मिथेन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इस न्यू एडिशन में कवर अप हैं। ओजोन लेयर के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, एंड सेपरेटली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट के, प्रोटोकॉल्स हो गया, कन्वेंशंस हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, या SDGs, MDGs, all that content has been covered in this new edition. Then with respect to unit 10, that is higher education system, ancient education system के regarding commissions, education commissions are highly important for you. National education policy 2020, इसका separately जो है content is available in this book, एंड क्वेश्चंस भी NEP 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंडिंग हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, दैट ऑल हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक. सो ऑल दोज हु वांट टू बाय दिस बुक, यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon. The link of that Amazon has been given in the description box. You can go to that link and order this book, and you can quickly prepare your paper 1 within few days, or you can WhatsApp your query on the given number in the description box below. Thank you so much for watching this video, and if you want to practice more questions related to number series, you must get this book from Amazon. Order this book today itself. इस बुक में आप नंबर सीरीज के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं. दे आर फुली सॉल्व्ड. प्लस यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर, दैट इज 9750000491, wherein you will get all shifts of paper 1 number series के questions separately, जो जून 2023 में आए थे and दिसंबर 2023 में आए थे. जितने भी number series के साथ related questions थे, you can get all those questions with their answers, so that you can practice more and more confidently and give your best in June 2024 examination. All the best.